الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم قبلہ امام مسجد ہذا حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد احمد مہدی، جن کے توسط سے مجھے آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا. آپ کی اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے گزریں گے. اور ایک مومن کامل اللہ کے گھر میں جب بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. جتنی دیر کے لیے مسجد میں رہتا ہے اس کا اتنا وقت اللہ کے ہاں عبادت کے اندر گزار دیا جاتا ہے. لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اتنا لمحہ، اتنے لمحات، اتنا وقت اللہ کے گھر میں گزارا ہے، گویا کہ اس نے عبادت کی ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ، ہمت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی بڑا پاکیزہ اور عالیشان ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور مسجد کے جو بانی ہیں، سربراہ ہیں انجمن انوار القادریہ کے حضرت علامہ مولانا محمد الطاف احمد قادری. یہ خوشی کی بات ہے جہاں کہیں کوئی اچھا عمل ہو، اچھا فعل ہو تو حوصلہ افزائی اور تعریف کرنی چاہیے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. 21 تو ہیں مسجدیں اور 24 ہیں مدرسے جن کے اندر طلباء اور طالبات کو تعلیمیں دی جاتی ہیں. اور ہمارے کرنگی کے اندر 4 مسجدیں ہیں. بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے انجمن انوار القادریہ نے یہ 4 مسجدیں بنائی ہیں کرنگی کے اندر. اس کے علاوہ 17 مساجد کراچی کے مختلف علاقہ جات کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال آپ سب حضرات ذرا ایک مرتبہ مجھے سنا دیں سبحان اللہ. آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا. دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو فی الفور بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے میدان کربلا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. بس محبت بڑے 2 شعر ہیں، بس ہم میدان کربلا کی یادوں کو تازہ کریں گے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. میں جنہیں میدان کربلا یاد ہے نا کہہ دیجئے سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. حضرت اصغر کہو تیر کھانا گود میں، حضرت
असग़र कब तीर खाना गोद में और नहर पर बात का बाजो कटाना याद है। जरा गज के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और नहर पर बात का बाजो कटाना याद है। जरा ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सन 61 हिजरी के अंदर एक दिल खराश वाकया रूनुमा हुआ, जिस वाकये को आप सब लोग बखूबी जानते हैं और मुझे भी आप जानते होंगे। मैं जितनी गुफ्तगू करूंगा, जितनी बातें करूंगा, उनमें से कोई बात गलत हो, रेफरेंस ना हो, हवाला ना हो, मेरी जिम्मेदारी है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो 61 हिजरी के अंदर वाक़या करबला रूनुमा हुआ, इसकी हकीकत समझे। बुनियादी तौर पर जो इख्तिलाफात थे ना, आप उनको समझे। नंबर 1, 61 हिजरी के अंदर यजीद नामी एक शख्स मुसल्लत हो गया, काबिज हो गया, लोगों को कहने लगा कि मैं तुम्हारा अमीर हूं, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारा सरदार हूं। बात समझ आ रही है? ये कहने लगा मैं सरदार हूं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अहलियान कूफा के खतूत आना शुरू हो गए कि जी हम तो आपके नाना के भी दीवाने हैं, आपके बाबा के भी दीवाने हैं, आपके भाई के भी दीवाने हैं, हम रसूलुल्लाह के घर वालों के भी दीवाने हैं और घर वालों के भी दीवाने हैं। वो कहते हैं कि जी आप हमारी तरफ आ जाइए। बुनियादी बात समझे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपके मिजाज के मुताबिक बात होगी। बुनियादी मसला यह था कि जब वो तख्त नशीन हो गया, काबिज हो गया, सबको उसने कहा कि जी मैं बादशाह हूं, मुझे मानो। बिकने वाले बिक गए, दौलत की खातिर मरने वाले मर गए, इख्तिदार वाले भी बिक गए, कुर्सी की खातिर बिक गए। लेकिन इमाम अली मकाम ने देखा कि ये जो तख्त नशीन हुआ बैठा है, इसका किरदार ये है कि ये कुरान का भी मुखालिफ है, हदीस का भी मुखालिफ है, मेरे नाना की शरीयत का भी मुखालिफ है। आपने फरमाया भाई शरीयत ये कहती है कि मोमिनों का अमीर और सरदार और हाकिम और बादशाह और वजीर आज़म वही होगा कि जिसका किरदार या कुरान के मुताबिक हो या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक हो। बुनियादी बात यही थी, कोई और इख्तिलाफात नहीं थे। बात समझना। अच्छा, जब ये बात हुई ना तो इसने मदीना के गवर्नर को, मक्का के वजीरों को ये कहा कि मेरा पैगाम हुसैन इब्न अली की तरफ पहुंचा दो कि मेरे हाथ में हाथ दे दें, वगरना मैं नहीं छोड़ूंगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ये हाथ जो प्यारे नाना जान के हाथों में रहे हो, मैं भला कैसे मान सकता हूं? आज अगर मैं तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा तो कयामत तक लोग कहेंगे कि जो मोमिनीन के अमीर ने काम किए ये काम दुरुस्त है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं ऐसा नहीं करूंगा और हरगिज़ नहीं करूंगा। अल मुख्तसर बात यह है कि मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, मदीने में आ गए, मदीने में भी रहने ना दिया गया। फिर अहलियान कूफा के वो खतूत थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे पास आए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को आपने भेजा कि जाओ वहां के हालात का जायजा लेकर आओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, उन्होंने कहा कि जी लोग बड़ी मोहब्बत वाले, बड़ी अकीदत वाले, आप इधर आ जाइए, हमसे प्यार करने वाले हैं। अब यहां पर सुनिएगा, यहां तक मैंने बातें कर दी कि वाक़या करबला के रूनुमा होने की पहली बुनियादी वजह ये थी कि यजीद कहता था मेरे हाथ में बैअत करो। इमाम हुसैन फरमाते थे कि मैं नहीं करूंगा। क्यों? कि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, तुम्हारा गुफ्तार अच्छा नहीं है, तुम्हारे आहार अच्छे नहीं है, और अगर मैंने हाथ में हाथ दे दिया तो ये एक सबूत बन जाएगा कि नबी के नवासे ने जिसको तस्लीम कर दिया वो ठीक है, उसके फैसले ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि वाक़या करबला एक मन घड़त कहानी है, एक मौजू बात है,
इसकी कोई तारीख नहीं, इसका कोई सबूत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आपको हवाले पेश कर रहा हूं, हवाले सुन लीजिए, फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों पर तवज्जो फरमाइए। आपके मेरे प्यारे नबी, जिंदा नबी अहमद मुस्तफा नबी ने फरमाया, जनाब अली किताब का नाम है बुखारी शरीफ, मेरे साथ बोलते रहिएगा। सिहाह सित्ता में सबसे बड़ी किताब जिसका नाम है बुखारी, इसकी जिल्द नंबर 3 है। कितनी जिल्द नंबर? जिल्द नंबर 3 है। इसके अंदर किताबुल मनासिब है, किताबुल मनासिब बिल हसन वल हुसैन। इसकी तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 1319, हदीस नंबर 3409। इसी तरह मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 2236, हदीस नंबर 2917। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत हो, हवाला गलत हो, मैं जिम्मेदार। इसके अलावा तीसरा वाला समाप्त फरमा दीजिए। जनाब अली किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हंबल, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 301, हदीस नंबर 7992। और एक और किताब हवाला नंबर 4 समाप्त करवाइए, मुस्नद रुयाना, इसकी जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 480, हदीस नंबर 6093। और इनके अलावा पांचवा वाला समाप्त करवा दीजिए। किताब का नाम है फतहुल बारी, की 13वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 10 है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर इल्मी बात पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि इल्म की कदर करने वाले बैठे हैं। जरा ऊंचा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे के गुलाम तवज्जो फरमाइए, मेरे आका ने क्या फरमाया, युरिकुन्ना आदल अय्यु अन कुरैश। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को हलाक कर दिया जाएगा, लोग हलाक हो जाएंगे, इस कबीले के लोग होंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन बंदा होगा जो इन लोगों को हलाक करने वाला होगा? आपके मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, कुरैश का एक काफिला होगा। यहाँ पूरे कुरैश मुराद नहीं है। इस काफिले का नाम क्या है? एक और रिवायत के अंदर बाकायदा नाम लिया गया, फरमाया जो मुसलमानों को तबाह करेगा, मुसलमानों को हलाक करेगा, मुसलमानों को शहीद करेगा, फरमाया उसका नाम यजीद होगा। ए मुसलमानों, जरा तवज्जो फरमा। 1500 साल पहले आपके मेरे प्यारे नबी ने बता दिया था, पेशगोई कर दी थी कि मेरी उम्मत को जो तबाह करने वाले होंगे, या उम्मत से मुराद 72 लोगों से कुदसिया है, अहले बैत अतहार है। पता ये चला अहले बैत अतहार की शहादत, ये पूरी उम्मत का नाम ले लिया गया कि इनकी जानों की बड़ी कीमत है। मेरे आका ने 1500 साल पहले बता दिया था कि ये वाक्य होगा। इन रिवायात से पता चला कि वाक्य पर बड़ा कोई मन घड़त नहीं है, बल्कि मेरे आका 1500 साल पहले फरमा गए। और इसके अलावा बुखारी के हदीस नंबर 3410, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलकहु उम्मती अला यदि गिलमति कुरैश। आपने फरमाया कुरैश के जवान होगा, वो कौन जवान होगा? अगर फिक्र करें, पता ये चलता है कि जो जवान है वो यजीद है, क्योंकि यजीद 18 साल का जवान था। एक तरफ यजीद खड़ा है, दूसरी जानिब हज़रत अली अकबर खड़े हैं। अली अकबर की उम्र भी 18 साल है। एक जानिब अली असगर है, जिनकी उम्र 6 माह है। अली औसत है। मेरे मौला अली के 4 शहजादे और भी हैं, जिनके नाम लेने में लोग डंडी मार जाते हैं। सुनिएगा, एक का नाम है अबू बकर अली, दूसरे का नाम है उमर बिन अली, तीसरे का नाम है उस्मान बिन अली।
उस्मान बिन अली एक तरफ यजीद खड़ा है, यजीद का इख्तिलाफ ये है कि वो शरीयत का मुखालिफ है। मेरे हुसैन ये फरमा रहे हैं कि आज अगर मैंने हाथ इसके हाथ में दे दिए, क़यामत तक के लिए कुरान इस हालत में मौजूद नहीं रहेगा। ये मस्जिद, ये मिंबर, ये मेहराब, ये शरीयत इस्लाम ऐसे नहीं रहेगा। इमाम अली मकाम अपने नाना जान के मज़ार पर जाते हैं, अपने नाना जान के मज़ार पे जाकर ये कहते हैं, ऐ नाना जान, आपके कलमा पढ़ने वालों ने हमें मदीने में रहने दिया, आपके कलमा पढ़ने वालों ने हमें मक्का नहीं रहने दिया। या रसूल अल्लाह, बताया तो कलमा पढ़ते हैं, मक्का में सारों के लिए जगह है, लेकिन आपके नवासे के लिए जगह नहीं है। मदीने में कलमा पढ़ने वालों ने हमें मजबूर कर दिया। आका, आज हम मजबूर होकर आपका शहर छोड़ के जा रहे हैं। रोते रोते सिसके आए, भरते भरते आंख लग जाती है। मेरे आका आप में आ जाते हैं। आप फरमाते हैं, प्यारे हुसैन, मैदान करबला में जाना तुम्हारा काम है। अल्लाह ने वादा फरमा दिया है, अल्लाह कुरान को भी बचाएगा, अल्लाह इस्लाम को भी बचाएगा। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। किस ज़बान से हो बयां शाने, हमारे पास वो ज़बान नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हमारे पास वो कलिमात नहीं है, इसलिए हम यूं अर्ज़ करते हैं, किस ज़बान से हो बयां शाने। सुभान अल्लाह के कहते हैं। अब एक और रिवायत और उसके हवाले समाज फरमा लें, फिर उसके बाद वाकया सुनाऊंगा। भाई ये जितनी बातें कर रहा हूं ना, नबी रहमत की हदीस से साबित है। आप अलैहिस्सलाम की एक और हदीस के बाद आपने फरमाया, ताअव्वज़ू बिल्लाहि मिन आति सबईना व इमारति सिबियान, फरमाया कि 70 की दहाई के इब्तिदाई दिनों, इब्तिदाई महीनों, इब्तिदाई साल से पनाह मांगना। क्यों? फरमाया क्योंकि 70 की दहाई के आगाज के अंदर जुल्म होगा, बर्बरियत होगी, लोग कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरी औलाद के कातिल होंगे। फरमाया पनाह मांगना। ये हुजूर ने कितने साल पहले फरमाया? 1500 साल पहले। कितने साल भाई? 1500 साल पहले। लोग कहते हैं कि वाक़या करबला मन घड़त बात है, अपने पास से तुमने बना ली है। मैंने कहा ये अपने पास से है, ये जो मैं हवाले दे रहा हूँ अपने पास से दे रहा हूँ, ये जो जुमले कह रहा हूँ अपने पास से दे रहा हूँ। सुनिएगा, किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हंबल, इसके दूसरे जल्द है, सफ़ा 326 है, हदीस नंबर है 8301। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अब भाई दोहरे सुनेंगे, वाक्य सुनेंगे या इल्मी बात सुनेंगे? कहें जरा सुभान अल्लाह। पर मेरी फितरत है, मेरा मिजाज है, बात करता हूँ ना। आपने तो कुछ लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पर, चैनलों पर, बोल पर मैं बैठा था, बोल चैनल पर, अभी कल की बात है, जब इतने सारे हवाले दिए ना तो कहने लगा ये जी कहां से ढूंढ लिया आपने? मैंने कहा तारीख में हदीस में है तो मैंने बताया ना, किसी को एतराज हो तो आए मुझसे बात करें। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई ये 1500 साल पहले की बात है। हवाला नंबर 2 मुसन्नफ इब्न शैबा, इसके जल्द 461, हदीस नंबर 37235। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मुस्नद फिरदौस, इसकी जल्द 2 नंबर 71 है, हदीस नंबर 2285। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऊंची कह सुभान अल्लाह। मुस्नद बाजार किताब का नाम है, इसकी जल्द 6 नंबर 235 है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसके अलावा जनाब हाजी मुस्नद मुस्नद फिरदौस के अंदर ये बात मौजूद है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो 61 हिजरी आएगी तुमने अल्लाह की पनाह मांगनी है। या रसूल अल्लाह क्यों पनाह मांगनी? फरमाया
میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے میری اولاد کے قاتل ہوں گے، میرے حسین کے قاتل ہوں گے، میرے علی اکبر کے قاتل ہوں گے، میرے قاسم کے قاتل ہوں گے، میرے کلمہ پڑھنے والوں کے قاتل بن جائیں گے۔ وہ امامت الصبیان، ان لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگنا، کیونکہ یزید 18 سال کا لڑکا تھا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرما گئے اگر تمہیں وہ وقت مل جائے، فرمایا یہ ساری طاقتوں کو چھوڑ دینا، میرے حسین ابن علی کا ساتھ دینا۔ اب امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچ کے اندر تصورات لے کر جائیے کہ ہر ایک کے لیے پینے کے لیے پانی ہے، ہر ایک کے کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، لیکن حسین ابن علی کے 72 ساتھی، ان کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا، ان کے لیے راستے بھی بند کر دیے گئے، ان کے لیے خوراک بھی بند کر دی گئی، ان کے لیے تمام تو سہولیات کو ختم کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے خیمے لگا دیے، کہیں پر علی اصغر موجود ہے، کہیں پر علی اکبر موجود ہے، کہیں پر حضرت عباس علمدار موجود ہیں۔ حسین ابن علی نے فرمایا اے لوگوں آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کل جب قیامت کا دن آئے گا میں نانا جان کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے نانا جان، کل میدان کربلا کے اندر جب میرے پر پریشانی کا عالم تھا، فلاں بن فلاں یہ بندہ یزید کا حمایتی نہیں تھا، یہ تو حسین کا ساتھی تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا میرا نانا جان تمہاری شفاعت فرمائے گا۔ کیونکہ جب میرا نانا جان کی سفارش آ جائے گی اللہ سارے حسینیوں کو جنتی بنا دے گا۔ ذرا اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم ہیں مصطفیٰ والے، مصطفیٰ والے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کو کھڑا کر کے میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چلے ہم مرتضیٰ والے بھی ہیں، مصطفیٰ والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت اطہار والے بھی ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، اے نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہمیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہمیں کربلا والے، ہم ہیں مرتضیٰ والے۔ ذرا سنا دینا سبحان اللہ۔ بھائی ابھی تک میں نے 2 مسئلے آپ تک پہنچائے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ واقع کربلا من گھڑت نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب مسئلہ نمبر 2 سنیے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے، پھر ہم دوبارہ میدان کربلا میں چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بات نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، کچھ نہیں مانگتا۔ اے میرے غلاموں میں نے تمہیں ہدایت کے راستے بتائے، کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں یہ سارے معاملات بتائے، کچھ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز ضرور مانگ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک چیز ہے، میری اولاد کی محبت مانگ کے جا رہا ہوں۔ اصحاب اکرام نے آپ کے یا رسول اللہ من هؤلاء الذین قد وجبت علینا، یا رسول اللہ جن کی محبت فرض کر دی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں؟
मेरे आका ने फरमाया आना, सबसे पहले नंबर पर मैं हूँ, दूसरे नंबर पर मेरे अली है, तीसरे नंबर पर हसन हुसैन है। आपने फरमाया मेरी अहले बैत सारे मेरी औलाद है, इनकी मोहब्बत को तुम पर बंद कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, अगर इनसे प्यार करेंगे हमें क्या मकाम मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया कि जो इनसे प्यार करेगा मैं मोहम्मद इनसे प्यार करूंगा, जिनसे मैं मोहम्मद प्यार करूंगा उनसे मेरा अल्लाह प्यार फरमाएगा। प्यार का ये मतलब नहीं है, अब मतलब इसलिए लोग कहते हैं कि जी बातें करके चले जाते हैं, लोग कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। आप सुनिए, मोहब्बत का मयार क्या है, फिर आपने मुआवजा करना है। मोहब्बत का ये मतलब होता है कि जिससे प्यार किया जाए उसके हर हर बात को माना जाए, उसके हर हर कौल पर अमल किया जाए, इससे मोहब्बत कहते हैं। ये नहीं है मोहब्बत कि मुहर्रम का महीना है 3-4 दिन हम काले कपड़े पहन ले, कोई सबीले लगा दें, कोई पानी पिला दे, कह दिया मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का ये मयार होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह नमाज आपकी आंखों के ठंडक के, हम नमाज पढ़ेंगे। इस्लाम आपने हमारे लिए पसंद किया, आका कुरान का हर हुक्म मानेंगे, कुरान की हर बात मानेंगे, आपने जो फरमा दिया मुझ पर अमल करेंगे। ये मोहब्बत का मयार होता है। ये झूठी मोहब्बत है, ये झूठे कहने जाए, ये झूठे दावे हैं कि बंदा के मोहब्बत करते नमाज ना पढ़े, बंदा के मोहब्बत करते हैं लेकिन नबी की बात ना माने कि जी मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करते हो नमाज में तो नजर नहीं आते हो। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत का मयार और मोहब्बत का बुनियादी रुकन ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी गुलामी की जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत का ये भी मयार है कि नबी के यारों से भी मोहब्बत की जाए, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत की जाए। पूछा कहो सुभान अल्लाह। फिर मेरा एक जुमला है, मैं ये कहता हूं कि हम खुश नसीब हैं, हम नबी के घर वालों से भी नौकर है और नबी के दर वालों के भी नौकर है ना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसे अगली मंजर सुनिए, मैदान करबला में दोबारा पहुंच जाते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली 6 मुहर्रम 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम का दिन आ गया। इमाम अली मकाम ने काफिर खुतबा इरशाद फरमाया इत्माम हुज्जत के लिए कयामत का दिन आए ताकि ये शिम्र, ये यजीद, ये इब्ने जियाद ये बहाने न बनाए। यजीद का साथ देने वाले ये ना कहे कि हमें पता नहीं था कि सामने कौन था। मेरे इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, नबी की तारीफ बयान फरमाई। ये सब बयान करने के बाद आपने फरमाया लोगों सुन लो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, अगर नहीं जानते तो सुन लो, मेरी अम्मा का नाम फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया लोगों और मैं कोई आम नहीं हूं, मेरी मामा जान फातिमा ज़हरा है, मेरे पापा हैदर करार है। इमाम अली मकाम ने फरमाया लोगों आज सुन लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मेरे बाबा हैदर करार है, मेरे नाना इमाम अल-अंबिया है। आपने फरमाया सुन लो, क़यामत के दिन ये ना कहना कि हमें पता नहीं था, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं कुरान के खातिर आया हूँ, मैं इस्लाम के खातिर आया हूँ, मैं नाना के फरमान के खातिर आया हूँ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि आज मैं इस्लाम को फैलाने आया हूँ, कुरान को बचाने आया हूँ, मैं नाना के दीन को बचाने आया हूँ। ऐ लोगों आज अगर हमारा साथ दोगे, मैं इस बात की जमानत लेके जा रहा हूँ कि अपने साथ देने वालों को मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाना जान ने फरमाया इस दुनिया के अंदर भी हमारी हुकूमत है और जन्नत में भी हमारी हुकूमत है।
क्योंकि आप फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना। फरमाया मेरे हुसैन की सरदारी दुनिया में भी है और जन्नत में भी सरदारी हुसैन की है। जरा ऊंचा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जन्नत मेरे मुस्तफा की है लेकिन सरदारी मेरे मुस्तफा के नवासा की है। क्यों? एक पंजाबी का शेर है, सुनेंगे? कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर शय खुदा ने बनाई सोने मदनी दीवाते। समझ आइए? मैं ये कहता हूँ कि सारी वो हदीसें भी उसके साथ साथ आपको लुत्फ देने के लिए मैं शेर पढ़ता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर शय खुदा ने बनाए सोने मदनी दीवाते। यानी हर चीज अल्लाह ने बनाई मुस्तफा के लिए। मेरे नबी ने फरमाया है हुसैन अल्लाह ने जन्नत में सरदारी आपको अता फरमा दी है। मैदान करबला के अंदर हुसैन इब्न अली फरमा रहे हैं आज मेरा साथ दे दो। अब 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हजरत हुर बिन यजीद रियाई जिनका नाम है, इन्होंने 3-4 दिन इमाम अली मकाम के साथ गुजारे थे। कोई चंद्रमा से हुसैन इब्न अली के पीछे पड़े थे। या हुर बिन यजीद कहते हैं हुसैन आप वापस चले जाइए, ये मेरी आप से मोहब्बत का बयान है। इमाम अली मकाम ने फरमाया हमारी नस्ल लजपाल है, हमारा घराना लजपाल है, हम जिसको पकड़ लेते तनहा नहीं छोड़ते। ऐ हुर बिन यजीद वापस नहीं जाऊंगा, अपने नाना का वादा निभाऊंगा, अपने नाना को इस्लाम बचाऊंगा और शरीयत पर पहरे देकर आऊंगा। अब हजरत हुर बिन यजीद रियाई मैदान करबला साजिद चुका है। उधर से नकारे बजाए जा रहे, बदमाशी की जा रही है। कौन है कि हमारे मुकाबले में आए? इमाम अली मकाम ने आखिरी बार ये मुकर्रर फरमाया कि आज सुन लो, ये मेरी बातें सुन लो, मेरा साथ दे दो, हमारे कदमों में आ जाओ। यजीद के काफिले के अंदर एक ऐसा शख्स जिस तरह हुर बिन यजीद है, ये सोचे कभी इक़्तिदार, कभी कुर्सी, कभी दौलत, कभी इमारत, कभी बंगले, कभी गाड़ियां, ये सारे ख्यालात आते हैं। इमाम अली मकाम की तकरीर सुनकर ये फैसला फरमाते हैं अगर आज मैं दौलत के लालच में आकर नवाज रसूल का काम छोड़ दूंगा, कलमा जिस नबी का पढ़ता वो नबी पूछेगा ऐ हुर बिन यजीद तेरी आंखों के सामने मेरी अहले बैत पर जुल्म तेरे तूने क्या किया? हजरत हुर बिन यजीद दौड़ कर जाते हैं, मेरे हुसैन के कदमों में जाकर अर्ज करते हैं अगर मैं आपके कदमों में आ जाऊं आप ये फरमाएं कि मेरी नौकरी मानी जाएगी कि नहीं? हुसैन इब्न अली ने फरमाया ए आने वाले आपका पहले जो भी मकाम था हुसैन ने आपको जहन्नम से आजाद कर दिया है। इसलिए नाम पड़ गया हुर। हुर का मतलब आजाद। ये हुसैन इब्न अली की ताकत और इख्तियार है। आपने फरमाया जाओ हमने आपको आजाद कर दिया, क्योंकि नबी रहमत ने फरमाया कि जन्नत की सरदारी मेरे हसनैन के पास है। अहले बैतदार की जो मोहब्बत है ना वो कामयाबी के लिए काफी है। और नबी रहमत ने फरमा दिया था कि मेरे कलमा पढ़ने वाले कितने बदबख्त होंगे कि मेरी औलाद को कत्ल करेंगे, मेरी औलाद को शहीद करेंगे, मेरी औलाद का मुकाबला करेंगे, लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नबी रहमत के घर वालों के भी नौकर हैं और तार वालों के भी नौकर हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।